So we'll start our class in front of here. So first topic is about SANS campaign. And SANS stand for Social Awareness and Action to Neutralize Pneumonia Successfully. That is a full form of the SANS. Okay? And it is a campaign initiated by the Ministry of Health and Family Welfare to reduce child mortality due to pneumonia, as the name suggests. So this particular campaign to control pneumonia, reduce child mortality due to pneumonia. It has been launched in Gujarat, which stands second among 37 states and union territories in the number of child deaths due to pneumonia. Because there are huge number of cases in Gujarat, and that is why this campaign has been launched in Gujarat. The government aims to achieve a target of reducing pneumonia deaths among children to less than 3% per 1,000 live births by 2025. So that is a target that we want to reduce the child mortality. Okay. According to WHO, pneumonia is the single largest cause of death in children worldwide. Okay. That is where this name of campaign can be asked. Okay, this SANS campaign is for which, for what? Okay, this kind of question can come in the exam. And our next important topic is about the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. So as we know that if we will talk about the last year, the issues or news items of last year, so then this is one of the most important news of the last year. Okay. Bifurcation of the जम्मू एंड कश्मीर. तो ये तो सबको पता है कि जम्मू एंड कश्मीर का बाइफर्केशन हुआ था, दो यूनियन टेरिटरी बनी जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से. Okay. But after that, this reorganization act has been passed. Okay. And which came into effect on 31st of October 2019. 31st of October 2019 को ये act basically implement हो गया था. Okay. It came into force, and that is why we will see what changes have been taken place in Jammu and Kashmir. Okay, so it's very important. Definitely इसके ऊपर questions आ सकते हैं. Okay, preliminary और mains में भी दोनों के लिए important है ये issue. So the J&K were bifurcated in August 2019. ये हमको पता है. And Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 came into effect on 31st October 2019. This reduces the number of states in India to 28, while the UT is to 8. 8 इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है because दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली मर्ज हो गया अभी, इसलिए यहाँ पर 8 लिखा है मैंने. Okay. So we'll see the various features or key points of this particular Reorganization Act. So ये सारे points आपको समझने और याद भी रखने हैं. First, now the two UTs of J&K and Ladakh will be headed by their respective lieutenant governors, who will be appointed by the President of India. So the head of these two UTs will be lieutenant governor. जैसे दिल्ली का head lieutenant governor, likewise पुडुचेरी का, likewise the UTs of this J&K and Ladakh will be headed by lieutenant governors. What other changes have been taken place? So the Ranbir Penal Code, जैसे कि यहाँ पर IPC all India के लिए यूज होता था, but for J&K there was a Ranbir Penal Code. So the Ranbir Penal Code, Constitution and Legislative Council of J&K stand abolished. So earlier there was a separate constitution for J&K, there was a separate penal code for J&K, and Legislative Council also was there. So all these things are now abolished. Okay, अब ये सब खत्म कर दी गई है. Next point. Election Commission will carry out a delimitation process in J&K. सब किस तरह से सीट्स को डिवाइड करना है,
सो अगेन एक डीलिमिटेशन एक्सरसाइज दोबारा से होगी, कॉन्स्टिट्यूएंसी वगैरह उसमें अलॉट होंगी कि इलेक्शंस के लिए। ओके, so this thing will be done by the election commission. J&K will have its own legislative assembly, क्योंकि दो यूनिट टेरिटरी बनी थी, J&K और लद्दाख। तो J&K में अभी भी लेजिस्लेटिव असेंबली रहेगी, ओके, जैसे दिल्ली में है या पुडुचेरी में है, उसी तरह से एक थर्ड यूटी होगी जिसमें कि बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली होगी। So the period for this legislative assembly will be 5-year tenure. ये specifically इसलिए भी mention हुआ है because earlier the period of the J&K assembly was 6 years. तो पहले bifurcation से पहले जो J&K assembly थी उसका tenure जो था वो 6 साल का था, ओके। लेकिन अभी ये tenure जैसे बाकी यूटीज या बाकी स्टेट्स की तरह 5 साल का हो गया। बट लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली will be there for only J&K UT, Union Territory of J&K. And इसको भी समझ लो that there will be 107 seats for this legislative assembly. जैसे राजस्थान के लिए 200 सीट्स हैं, ओके, लेजिस्लेटिव असेंबली की। सो J&K के लिए 107 सीट्स होंगी टोटल, इंक्लूडिंग 24 वैकेंट वंस फॉर POK। हम लोग ऐसा मान के चलते हैं कि दैट POK भी हमारे इंडिया का ही पार्ट है। इनफैक्ट हमारे मैप में भी हम POK को हमेशा इंक्लूड करके रखते हैं, J&K का एक पार्ट मानते हैं इसको, एंड दैट इज व्हाई हमने POK के लिए भी सीट्स डिफाइन की हैं। दिस 24 वैकेंट वंस फॉर POK। तो 107 में J&K जो POK का एरिया है उसकी सीट्स भी इसमें इंक्लूडेड है। एंड इन फ्यूचर इफ यू कुड एक्वायर द POK, okay, then from this area the legislatures this legislators can join in this 107 seats, so which will be increased to 114 after delimitation, okay. so ये अभी के लिए, but delimitation process complete होने के बाद it would be increased to 114. in the Lok Sabha में कितनी सीट्स हैं? 5 MPs will be there from J&K and 1 from Ladakh. तो ये भी इंफॉर्मेशन याद रखना आप लोग कि लोकसभा के लिए जो सीट्स एलोकेट हुई हैं J&K को 5 सीट्स एलोकेट हुई हैं और लद्दाख यूटी को 1. 4 sitting Rajya Sabha MPs will continue to be members of the upper house from the state. तो राज्य सभा में 4 सीट्स हैं, जो पहले थी वही अभी भी हैं. The center will be in direct control of the police and law and order in J&K. तो जो लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन है ये बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ओके. जैसे दिल्ली में भी लॉ एंड ऑर्डर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास रहता है, लाइकवाइज फॉर J&K also the law and order is with central government, while the land will be under the elected government here. Land ownership and employment will be open to all Indian citizens. Okay. Although this land subject जो है वो यूटी के जो इलेक्टेड असेंबली उसके पास रहेगा, ओके, ये सब्जेक्ट, but this land ownership and employment will be open to all Indian citizens. पहले एक आर्टिकल एक इंसर्ट हुआ था जिसके कारण जो बाहर के आउटसाइडर्स हैं वो जम्मू एंड कश्मीर में कोई भी प्रॉपर्टी नहीं ले सकते थे. ओके, व्हाट वाज दैट आर्टिकल जिसको हम लोग ने एबोलिश किया? The article which barred the acquiring of property in Jammu and Kashmir to outsiders. Property or any kind of employment. Yes, anybody? Okay. So Article 35A के बारे में सुना होगा आप लोगों ने. Yes. Anybody listen? Article 35A याद आया आप लोगों को? इस तरह का, yes, Article 35A. इस तरह का आर्टिकल इंसर्ट हुआ था पहले, जिसके कारण कोई भी आउटसाइडर
प्रॉपर्टी नहीं ले सकता था. ओके, बट नाउ as this article 35A is abolished, now anybody from any state can now take the property in Jammu and Kashmir. Okay, so the UT of Ladakh will have no legislative assembly and will be under the direct control of the central government through the LG. Okay, so Ladakh में कोई legislative assembly नहीं होगी, जैसे J&K में legislative assembly है, but in Ladakh, for Ladakh there won't be any legislative assembly and will be under the direct control of the central government through the LG. The bureaucracy of J&K state would be divided between the two successor UTs. Okay, the present bureaucracy of J&K will be divided. Okay, उसको divide कर दिया जाएगा, कुछ लद्दाख में चले जाएंगे और कुछ J&K में रह जाएंगे. The officers posted in J&K will continue to be part of their existing cadre. However, future posting will be made from the officers of AGMUT, Arunachal Goa Mizoram Union Territory cadre. तो जब आप लोग डेफ फिल करोगे आफ्टर क्वालिफाइंग प्रीलिम एग्जाम, जब आप लोग मेंस एग्जाम दोगे तो एक डेफ फिल करना होता है, डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म. उस टाइम आपको चॉइसेस भरनी होती है कि मेरे को पोस्ट की चॉइसेस जो भरनी है या अपना जो प्लेस जो अपने कैडर चूज करना है कि कहाँ कौन से स्टेट में मैं बेसिकली फ्यूचर में पॉइंट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए आपको एक डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म भरना होता है. ओके, तो उस सर्विस में देखना आप लोग, उसमें ये भी सर्विस होती है AGMUT, और ये AGMUT स्टैंड्स फॉर दिस अरुणाचल गोवा मिजोरम एंड यूनियन टेरिटरी. सारी यूनियन टेरिटरीज भी इसमें आ जाती हैं. ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस अरुणाचल गोवा एंड मिजोरम. तो अभी J&K को बेसिकली जो आप चॉइस फिल करोगे तो यहाँ पर जो ब्यूरो जो फर्दर सिविल सर्वेंट्स यहाँ पर अपॉइंट होंगे J&K में, दे विल बी थ्रू दिस AGMUT कैडर. तो आपको ये J&K को लद्दाख को इस कैडर में रखा जाएगा, AGMUT कैडर में. ओके, बिकॉज दिस two things, these two places have become now union territory. Okay, so the High Court of J&K shall be the common High Court for both the UTs. The High Court of J&K shall be the common High Court for both the UTs. A Kashmiri woman will not be denied the right to inheritance if she marries a person from other parts of the country. But now Pakistan nationals will not be eligible for Indian citizenship by marrying Indian Kashmiri woman. So पहले क्या होता था कि मान लो कश्मीरी किसी वुमन ने आउटसाइड मैरिज कर ली, किसी और स्टेट के किसी पर्सन के साथ मैरिज कर ली, then she denied the right to inheritance. Okay, after marriage. But now this won't happen. यदि कश्मीरी वुमन किसी आउटसाइडर से शादी करती है तो still she would have inheritance, right to have inheritance. Okay, and पहले पाकिस्तान नेशनल्स को इंडियन सिटीजनशिप, जैसे कि कश्मीरी वुमन के साथ मैरिज करता था उसको इंडियन सिटीजनशिप मिल जाती थी, बट नाउ दिस सिटीजनशिप विल बी डिनाइड. ओके, सो पाकिस्तान नेशनल्स विल नॉट बी एलिजिबल फॉर इंडियन सिटीजनशिप बाय मैरिंग इंडियन कश्मीरी वुमन. So these changes have taken place after this reorganization act. Now we read about Special Protection Group. इसको शॉर्ट में SPG भी बोला जाता है, स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप, SPG अमेंडमेंट एक्ट 2019. आप लोगों को याद होगा, ये भी न्यूज में था काफी, SPG. और किसी को पता है किस लिए न्यूज में था ये, किसी को याद है? तो ये स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप में अभी फिलहाल अमेंडमेंट हुआ था जिसके आई थिंक आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. अकॉर्डिंग so this amendment recently brought into picture when the security of Priyanka Gandhi Vadra and Rahul Gandhi was removed. Right. पर इसमें यही प्रॉब्लम है कि इसको लोगों ने गलत तरीके से इंटरप्रिटेशन किया है, तो इसको सिक्योरिटी इनफैक्ट रिमूव नहीं हुई थी उनकी, जस्ट उनको ये SPG से Z+ सिक्योरिटी दी गई है. दैट डजंट मीन कि उनकी सिक्योरिटी रिमूव हो गई है, बट अगेन द कांग्रेस मैन मेड ह्यू एंड क्राई कि ये सिक्योरिटी रिमूव कर दी. ऐसा कुछ भी नहीं था, सिक्योरिटी रिमूव नहीं हुई थी. सो वी विल सी द कांसेप्ट ऑफ SPG in this particular class. So it was introduced by Ministry of Home Affairs in November 2019.
ये जो अमेंडमेंट था ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। द बिल अमेंड्स द स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एक्ट 1988। इट वाज इनेक्टेड एंड साइंड बाय दिसंबर 2019। तो ये जो स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप था ये 1988 में आया था under this particular act, and it was enacted and signed by December 2019. Now, what is SPG? It is an allied force raised in 1985 to provide proximate security cover to the Prime Minister, former Prime Ministers, and their immediate family after the assassination of PM Indira Gandhi in 1984. जैसे कि 1984 को उनके जो पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड ने बेसिकली फायर किया था, so at that time it was decided कि प्राइम मिनिस्टर्स की सिक्योरिटी और बढ़ानी चाहिए, okay, and that is why a new force has been created, SPG, named as SPG, Special Protection Group. and ये जो SPG बनाया गया था ये सिर्फ इन लोगों के लिए बनाया गया था, याद रखना, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली, सिर्फ इन लोगों के लिए, इसके अलावा और किसी के लिए नहीं, मिनिस्टर्स के लिए नहीं है ये, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स एंड देयर इमीडिएट फैमिली, तो इसके लिए बनाया गया। So there are largely, अब देखते हैं कितनी तरह की सिक्योरिटी फोर्सेस होती है, तो ये हायरार्की में है। देखो आप लोग, ये सबसे बड़ी सिक्योरिटी फोर्स है जो किसी को मिल सकती है, वीआईपी सिक्योरिटी, जैसे कि हमने बोला कि प्राइम मिनिस्टर या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर या उनकी इमीडिएट फैमिली को ही मिल सकती है। So this is the topmost security which can be provided to any VIP person. उसके बाद फिर आता है Z+, ये भी अच्छी खासी सिक्योरिटी होती है, Z+ सिक्योरिटी, ओके, इसमें भी सर्किल से इसको बेसिकली घेर दिया जाता है जो भी वीआईपी लोग होते हैं, so इसमें मल्टीपल सर्किल्स होते हैं, so obviously this security is also very high cover, a very high security cover. So then Z+ के बाद Z आता है, and then Y+, and then Y, and then X. तो ये इतनी तरह की 6 तरह की सिक्योरिटी कवर्स हैं जो प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग। So while SPG is meant only for the PM and his immediate family, other categories, जो ये बाकी 5 categories हैं, other categories can be provided to anyone about whom the center or state government have input about facing a threat. The Ministry of Home Affairs takes the call for providing security after evaluating the inputs from all the intelligence agencies. तो ये सिक्योरिटीज है, ये किसी फिल्म स्टार को मिल सकती है, किसी भी वीआईपी पर्सन को मिल सकती है, ओके, डिपेंड्स। So we'll move to key provisions of Amendment Act. हम दोनों को कंपेयर करेंगे कि क्या चेंजेस हुए हैं, ये काफी थोड़ा सा ये क्वेश्चन इसमें आ सकता है, और जिसको हम ढंग से नहीं समझेंगे उसमें आप गलत मिस्टेक भी कर सकते हैं, तो उसको समझना जरूरी है, ओके, बिकॉज एवरीबडी नोज ओनली वन थिंग दैट सिक्योरिटी कवर हटा दिया गया था, कुछ एसपीजी हटा दिया गया था, ऐसा कुछ सबको पता है, बट नोबडी नोज दैट एग्जैक्ट चेंजेस, ओके, एग्जैक्टली चेंजेस हुए क्या है। सो हम कंपेयर करेंगे पहले क्या था और अभी क्या हुआ है, ओके। सो द सिक्योरिटी कवर earlier the security cover is provided to the prime minister, former prime ministers and their immediate family members, okay, ध्यान से पढ़ना, the security cover is provided to the prime ministers, former prime ministers and their immediate family members, पहले ऐसा होता था, अभी क्या है, the security cover or protection is provided to prime ministers, former prime minister and their immediate family members that will reside with him at his official residence. तो आपको भी सेम ही तो है, प्राइम मिनिस्टर, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड इमीडिएट फैमिली, यहाँ पर भी सेम है। ऑफिशियल रेजिडेंस अलग है, ऑफिशियल रेजिडेंस में जो रिसाइड करेगी फैमिली सिर्फ उसी को सिक्योरिटी कवर मिलेगा। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि इमीडिएट फैमिली का पहली बात तो मतलब क्या होता है, इमीडिएट फैमिली मतलब आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, ओके, इमीडिएट फैमिली, आपके चिल्ड्रन हो सकते हैं, आपके अनमैरिड भाई बहन या कुछ माइनर्स वो भी हो सकते हैं, ओके, लेकिन शर्त यह है कि वो प्राइम मिनिस्टर हाउस के साथ ही रहे। जैसे मान लो फर्ज करो हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं और उनकी फैमिली गुजरात में रहती है, ओके, तो उनकी मानो वाइफ भी गुजरात में या मदर उनकी गुजरात में, ओके, तो उनको सिक्योरिटी कवर नहीं मिलेगा आफ्टर दिस चेंज, पहले मिल सकता था, ओके, भले उनकी फैमिली उनके साथ ही रहती, पहले मिल सकता था एसपीजी सिक्योरिटी, बट अभी नहीं मिलेगा। व्हाई? बिकॉज दिस इज द कंडीशन, यदि प्राइम मिनिस्टर के साथ उनकी मदर आने रहने लग जाए पीएम हाउस में,
देन शी विल गेट ए एसपीजी सिक्योरिटी। वो फिर कोई बाहर जाएंगी अपने घर से तो फिर डेफिनेटली उनको एसपीजी सिक्योरिटी साथ चलेगी। ओके, तो दिस इज अ चेंज। तो ये चेंज लगा दी है कि जो भी फैमिली उस प्राइम मिनिस्टर हाउस में प्राइम मिनिस्टर के साथ रहती है तो सिर्फ उसी को इंक्लूड किया गया है, तो उस ऑफिशियल रेजिडेंस में जो फैमिली रहती है। ओके, फर्स्ट चेंज। इससे हमारा खर्चा कम होगा डेफिनेटली। अब जो फैमिली हाउस में नहीं रहती उसको सिक्योरिटी कवर नहीं मिलेगा तो इससे हम डेफिनेटली हमारे एक्सचेकर में कमी आएगी। ओके, तो हमारा खर्चा होता है, एसपीजी के ऊपर बहुत खर्चा होता है डेफिनेटली। सेकंड चेंज जो हुआ वो देखते हैं हम लोग। द सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड, पर पहले क्या होता था, द सिक्योरिटी विल बी प्रोवाइडेड ओनली फॉर अ पीरियड ऑफ 1 year फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स and his immediate family members from the date on which they cease to hold the office. Beyond this period, the SPG security is provided based on the level of threat as decided by the central government. और वो किस तरह की थ्रेट हो सकती है? One is emanate from military or terrorist organization. Second is the be of a grave and continuing nature. ये दो कैटेगरी रखी गई है। तो हम समझते हैं इसमें होता क्या था कि पहले हम ये कहते हैं कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए केस में ये कहते हैं कि जैसे ही कोई प्राइम मिनिस्टर का 5 year पीरियड खत्म हो गया तो उसके 1 साल बाद तक उसको एसपीजी सिक्योरिटी मिलेगी, उसके बाद वो खत्म हो जाएगी उसको और उसकी इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को। ओके, अगेन पहले ये कंडीशन ये थी कि उसके साथ रहे फैमिली मेंबर्स, यदि दूर भी रह रहे हैं तो उनको सिक्योरिटी कवर मिलता था 1 साल के लिए एसपीजी सिक्योरिटी कवर। बाकी सिक्योरिटी कवर तो उनको मिलेगा ही, जेड प्लस दे रहे हैं या उसके बाद भी 1 साल के बाद भी, वो अलग चीज है। लेकिन एसपीजी की यहाँ पर बात हो रही है, एसपीजी 1 साल तक मिलता था फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर उनकी इमीडिएट फैमिली को। और यदि एक्सटेंशन करना है, मान लो किसी को यदि ये थ्रेट परसेप्शन है, यदि कुछ इनपुट्स मिलते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को कि जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं उनको कुछ थ्रेट हो सकती है, देन सेंट्रल गवर्नमेंट विल डिसाइड कि इनकी सिक्योरिटी कवर एसपीजी को एक्सटेंड करना ही नहीं करना, बट अदरवाइज इट वाज फॉर 1 year. And this is for the former prime minister and their immediate family members. But now what change has taken place? That security will be provided to former prime ministers and their family members, immediate family members obviously, residing with him at the residence allotted to him. पहली बात तो ये है कि अब कोई फॉर्मर मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर और उनकी फैमिली को कभी मिलेगी, इनकी फैमिली को कभी मिलेगी यदि वो प्राइम मिनिस्टर के साथ रह रहे हैं। So this security will be provided for a period of 5 years. तो जो भी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, जो अभी जस्ट फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हुए, जैसे उन्होंने रेजिग्नेशन या उनका जो पीरियड पूरा हो गया, कंप्लीट हो गया प्राइम मिनिस्टर का, एंड देन उसके बाद फिर उनके 5 साल स्टार्ट हो जाते हैं। उनको 5 साल तो उनको ड्यूरिंग प्राइम मिनिस्टर उनको सिक्योरिटी मिल गई एसपीजी, तो 5 साल उनको प्राइम मिनिस्टर वो नहीं है तो उसके बाद मिल जाएगी, तो 10 साल तक उनको एसपीजी मिल जाएगी। ओके, 5 years during prime minister and 5 years after being a prime minister. So from the date on which he ceases to hold the office of prime minister, तो ये पीरियड इनको 5 years कर दिया गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए, तो ये याद रखना। नेक्स्ट चेंज, अब इसको समझना आप लोग। The act provided that if the SPG security is withdrawn from a former prime minister, it will also be withdrawn from the immediate family members warrant such security. तो पहले ये कंडीशन, यदि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को एसपीजी विड्रॉन होगी तो उसके इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को भी विड्रॉन हो जाएगी, पर कंडीशन क्या थी? वारंट सच सिक्योरिटी। यदि इनको सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो यदि रिक्वायरमेंट है तो उनको सिक्योरिटी मिलती रहेगी। अभी चेंज क्या हो गया, ये वाली जो कंडीशन है ये हटा दी गई है। दैट मींस नाउ इट हैज मेड कंपल्शन कि जैसे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को सिक्योरिटी कवर उसका पीरियड खत्म हो गया फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसी के साथ इमीडिएट फैमिली मेंबर्स के लिए भी खत्म हो जाएगा वो पीरियड। So the amended act removes this condition to state that if the SPG security is withdrawn from a former prime minister, it will also be withdrawn from the immediate family members. Okay. तो अभी ये कंडीशन खत्म होगी, इसका मतलब जैसे ही फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के वो जो 5 साल पीरियड है वो खत्म हो जाएंगे, वैसे ही इमीडिएट फैमिली मेंबर्स का वो पीरियड खत्म हो जाएगा। ओके, तो उनकी सिक्योरिटी एक्सटेंड नहीं होगी। पर ये याद रखना जो भी हम ये सब पढ़ रहे थे, दिस इज फॉर एसपीजी सिक्योरिटी,
अभी इस थर्ड पॉइंट के चलते राहुल गांधी की सिक्योरिटी खत्म कर दी गई है या प्रियंका वाड्रा। ओके, तो इसमें क्या था कि पहले जैसे यस Does this third point implies कि if the former prime minister is dead, then no family member will be given the security? राइट ऐसा ही है। तो एक तरह से उनके साथ है, जैसे कि फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के साथ ही है उनकी, यदि उसको मिल रही है तो इनको भी मिलेगी। तो कंडीशन दूसरी ये भी है कि उनके साथ रहना चाहिए। अब वो जो फॉर्मर मिनिस्टर में है ही नहीं, तो इस ऑफिशियल रेजिडेंस में वो रह ही नहीं सकती, डेफिनेटली उनको ऑफिशियल रेजिडेंस को भी छोड़ना पड़ेगा। ओके, बिकॉज दिस ऑफिशियल रेजिडेंस इज गिवन टू फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर एंड नॉट इट्स हिज इमीडिएट फैमिली मेंबर्स। डेफिनेटली ये कंडीशन उस टाइम अप्लाई होती है, यदि वो उनकी डेथ भी हो जाती है फॉर्मर मिनिस्टर को, स्टिल दिस इमीडिएट फैमिली मेंबर्स वोंट गेट। सो यहाँ पर पहले क्या होता था कि जैसे कि अभी जो राहुल गांधी वगैरह, ना तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के मतलब फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर बेसिकली थे अभी कुछ ना टाइम से, वो बहुत पहले कभी उनके फादर हुआ करते थे राजीव गांधी। ओके, उनको सिक्योरिटी अभी भी मिली हुई थी एसपीजी बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन, थर्ड पॉइंट के चलते। ओके, बिकॉज ये पॉइंट अभी खत्म कर दिया गया, इसलिए उनको सिक्योरिटी अभी नहीं मिल रही। ओके, दिस बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनको सिक्योरिटी मिल रही है, डेफिनेटली उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी है एंड दैट इज मोर देन इनफ। जेड प्लस सिक्योरिटी से भी कोई कुछ कर नहीं सकता। ओके, दैट इज मोर देन इनफ। सिर्फ एसपीजी हटाया गया और इनफैक्ट एसपीजी इज वेरी कॉस्टली। ओके, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी अपने काम इमीडिएट फैमिली मेंबर्स को दे रहे हैं एसपीजी। Okay, so definitely it's a good move. There is nothing wrong in this removing this SPG security. इसमें कुछ भी political vendetta में भी कुछ लोग सोच सकते हैं, but I think there is no problem. Okay, जेड प्लस सिक्योरिटी मिल रही है उनको भी। So this is the this changes have been taken place. ये तीन तरह के changes आपको याद रखने हैं जो भी हुए हैं अभी। So आगे चलते हैं। So office of CGI comes under purview of RTI. So this is also talked topic. Okay, ये मेंस में इस बार क्वेश्चन आ सकते हैं। जुडिशरी डेफिनेटली हमारे सिलेबस में है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, GS2, ओके, एंड GS4 में भी आ सकता है। ट्रांसपेरेंसी और ये सारे इश्यूज, गुड गवर्नेंस, ये सब इश्यूज GS4 में डिस्कस होते हैं, एथिक्स इश्यूज में आते हैं। ओके, तो ये कहीं पर भी क्वेश्चन आ सकता है। इनफैक्ट ऐसे भी आ सकता है जुडिशरी के ऊपर। ओके, ट्रांसपेरेंसी इन जुडिशरी व्हाटएवर, जो भी हमने केसेस हम न्यूज़पेपर एनालिसिस भी करते थे, काफी डिस्कस भी किया हम लोगों ने। इनफैक्ट जब मैं पॉलिटी आपको डिस्कस कर रहा था क्या क्या इश्यूज हो सकते हैं जुडिशरी को, हमने सारे तमाम वो इश्यू डिस्कस किए, और जो रिफॉर्म्स हो सकते हैं वो भी हमने वहां पर डिस्कशन की। ओके, सो ऑब्वियसली एवरीथिंग इज नॉट गुड विद इन जुडिशरी, although we are saying that judiciary is the this ultimate institution, okay, to protect our fundamental rights. Okay, हम कहते हैं सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन सुप्रीम कोर्ट ही है या जुडिशरी ही है जो कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है। But on the same time, judiciary is not reforming itself. हमने NJAC के बारे में पढ़ा था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, okay, which was nullified, which was made ultra vires or void by the judiciary. Judiciary ने उसको बेसिकली नहीं माना था, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन। There were very many other reforms which judiciary is not making it, I mean not uh, implementing. Okay, तो जैसे ट्रांसपेरेंसी की इशू है, जो ये जो बंद कमरे में होती हैं, जो भी ये प्रोसीडिंग्स होती हैं, ओके, दीज आर नॉट पब्लिक। ओके, इसके अलावा अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस एंड ट्रांसफर ऑफ जजेस, ये भी एक फॉरमोस्ट इशू है। ये भी, इसमें भी कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, कोई रीजन नहीं बताया जाता कि इसको क्यों हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में बेसिकली प्रमोट किया गया है। ओके, सो ये सब चीजें बेसिकली एक इशू बन के इशू है डेफिनेटली। सो अभी एक रिसेंटली जजमेंट आया था, दिस 5 जजेस का बेंच का बेसिकली जजमेंट आया था, ओके, रिगार्डिंग द RTI, दैट वेदर दिस ऑफिस ऑफ CGI इज अंडर RTI, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, और नॉट। ये क्वेश्चन था, इसके ऊपर बेसिकली एक प्ली फाइल हुई थी, उसकी डिटेल नहीं लिख रहा मैं आपको यहाँ पे, तो किस तरह से प्ली फाइल हुई थी। तो एक पर्सन था, आई थिंक मे बी सुभाष और इस तरह कुछ नाम था उस पर्सन का। ओके, सो उसने बेसिकली पहले एक RTI एप्लीकेशन फाइल की थी टू नो अबाउट दिस द पर्सनल एसेट्स, कि जो भी जजेस हैं वो अपने पर्सनल एसेट्स डिस्क्लोज करें कि आपके पर्सनल एसेट्स क्या हैं। ऐसा तो नहीं कि आप ब्राइब ले रहे हो या इस तरह से। ओके, लेकिन जजेस का जो नोडल इंफॉर्मेशन ऑफिसर है उसने मना कर दिया जुडिशरी का, ओके, डिस्क्लोज करने के लिए इंफॉर्मेशन। एंड देन ये एप्लीकेशन फिर CIC तक गई, चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन तक गई, और फिर बाद में ये अपीलेट पे होते हुए फिर ये बेसिकली प्ली फाइल हुई
जुडिशरी में। तो एक 2005 में ये 2006 से केस चल रहा था, काफी पहले से ये चल रहा था। ओके, बट इन November 2019 the 5-member bench of Supreme Court held that the office of CJI is a public authority under RTA. तो भी फाइनल डिसीजन क्या लिए है जुडिशरी ने, दैट CJI is a public authority under RTA। इसका मतलब कि RTA एप्लीकेशन फाइल की जा सकती है अगेंस्ट CJI ऑफिस। ओके, सो पहले तो पब्लिक अथॉरिटी समझते हैं हम लोग। RTA एक्ट के अंदर पब्लिक अथॉरिटी का मतलब क्या होता है, बिकॉज जजमेंट यही आया कि CJI office is will be now considered as a public authority under RTA Act. So section 2H of RTA Act 2005 talks about public authority, and this section defines a public authority as any authority or body or institution of self-government established or constituted, okay, by or under the constitution। इसका मतलब जो भी constitutional bodies हैं, it could be election commission, it could be UPSC, it could be any other constitutional organization, okay, जो भी constitutional organization है वो सारी की सारी public authority में आएंगी, ऐसा ये एक्ट बोलता है, RTA Act 2005 सेक्शन 2H ऑफ RTA एक्ट। उसके अलावा जो भी बॉडीज क्रिएट की गई है, जो भी इंस्टीट्यूशन या बॉडीज क्रिएट की गई है अंडर द लॉ ऑफ पार्लियामेंट, वो सारी बॉडीज भी, जैसे कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ओके, UIDAI, ओके, इसके अलावा जो भी ये जो बॉडीज क्रिएट की गई है, टाइगर अथॉरिटी, ओके, ये सारी जो पार्लियामेंट लॉ से जो इंस्टीट्यूशन क्रिएट किए गए हैं वो भी सारे के सारे RTA के अंदर आएंगे या पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे। थर्ड, बाय एनी अदर लॉ मेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर, जैसे कि पार्लियामेंट कोई लॉ बना के बॉडी बनाता है, इस तरह से स्टेट लेजिस्लेचर कोई बॉडी बनाता है, देन दैट विल बी अंडर दिस पब्लिक अथॉरिटी। So by fourth is the by notification issued or order made by executives, तो वो भी सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आएंगे। तो एक तरह से सारी जो भी गवर्नमेंट से जो भी बॉडीज हैं सारे के सारे पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आनी चाहिए, ऐसा RTA का सेक्शन 2H बोलता है। और हम लोग RTA किसके फाइल कर सकते हैं, पब्लिक अथॉरिटी के अगेंस्ट। एक तरह से हम लोग UPSC के अगेंस्ट भी RTA फाइल कर सकते हैं, बट UPSC इसको रिप्लाई नहीं करता, ओके, बिकॉज इट टेक्स दैट कि हम ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन है और इससे हमारे प्रोसेस में फर्क पड़ेगा, तो जनरली अच्छे से रिप्लाई नहीं होता, कोई भी कॉपीज आप नहीं देख पाते हो, ओके, जो आप मार्क्स कम आते हैं तो भी आप कॉपी नहीं देख पाते UPSC में, ओके, एंड कोई भी रीजंस आपको नहीं देते ये लोग कि कैसे रिजल्ट ऐसा क्यों आया या व्हाटएवर, क्या इनका स्केलिंग मेथड, कैसे नॉर्मलाइजेशन करते हैं, सो दिस थिंग्स आर हिडन, ओपेक एंड नॉट ट्रांसपेरेंट। So obviously there is there is a need to reform this UPSC institution also। इस तरह से जुडिशरी का भी हमेशा ये रहता था कि जब भी कोई RTA फाइल करता था तो जुडिशरी बोलते कि ये हमारी बेसिकली इंडिपेंडेंस जुडिशरी को बेसिकली ब्रीच कर रहा है प्रिंसिपल को, ओके। एंड इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कौन से आर्टिकल से इंश्योर करते हैं, आर्टिकल 50 ऑफ DPSP, उसमें बेसिकली दिया गया कि इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसके अलावा सेपरेशन ऑफ पावर्स के लिए भी बेसिकली हम देखते हैं जितने भी जो आर्टिकल्स हैं, ओके, ये सेपरेशन पावर की बात करते हैं। सो तो हमेशा निगेट करता था, हमेशा मना करता था जुडिशरी, जब भी कोई RTA एप्लीकेशन आती थी तो ये डिस्क्लोज नहीं करते थे, जजेस अपने एसेट्स डिस्क्लोज नहीं करते थे, कैसे ट्रांसफर हो रहे हैं ये सब डिस्क्लोज नहीं होता था, ओके। तो अभी लेकिन इससे पहले बात बताता हूँ कि ये जो अभी ये जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का November 2019 में, इससे पहले दिल्ली हाई कोर्ट का भी इस तरह का जजमेंट आया था, सेम जजमेंट। So the order upheld the Delhi High Court judgment that ruled that Office of the Chief Justice is a public authority under Section 2H of the RTA Act 2005। तो सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने ये जजमेंट दिया था, and now the Supreme Court upheld the judgment of Delhi High Court। upheld का मतलब सही ठहरा दिया, ये जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट ने दिया था वो सही है सुप्रीम कोर्ट में, ओके। तो इससे फायदा क्या होगा, ये जजमेंट का यूटिलिटी क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। दिस विल एनेबल द डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन सच एज द जजेस पर्सनल एसेट्स। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट cautioned that confidentiality and right to privacy have to be maintained and that RTA cannot be used as a tool of surveillance।
It also said that only the names of judges recommended by the collegium can be disclosed, but not the reasons. So this judgment, although we say that this judgment is a welcome judgment, still there are very loopholes which judiciary left. Okay, एक तरफ तो इन्होंने ये कहा कि ठीक है ये पब्लिक अथॉरिटी के अंदर आता है, तो जजेस की जो भी पर्सनल एसेट्स है ये डिस्क्लोज होंगे. ओके, तो ये जजेस डिस्क्लोज करेंगे अपने पर्सनल एसेट्स, यदि आरटी फाइल होती है या अदरवाइज ओके वॉलंटरीली भी डिस्क्लोज करेंगे. और साथ ही साथ ये भी कह दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट को रिसाइड करते हुए ये भी बोल दिया कि हमको बैलेंस बना के रखना है. बैलेंस किसके बीच में? राइट टू इंफॉर्मेशन और राइट टू प्राइवेसी के बीच में. कि आप लोगों को राइट है कि आप लोग हमारी इंफॉर्मेशन डिमांड कर सकते हो, बट ऑन द अदर हैंड ऑन द सेम टाइम देयर इज अ नीड टू इंश्योर द राइट टू प्राइवेसी ऑफ जजेस. जजेस की प्राइवेसी भी मेंटेन करना उतना ही जरूरी है. सो देयर नीड टू बी बैलेंस. इसका मतलब ये डिसाइड कौन करेगा? ऑब्वियसली जुडिशरी, कि whether this particular RTA application breaches the right to privacy or not. एक तरह से ये सब्जेक्टिव हो गया, इट्स नॉट ऑब्जेक्टिव. ऑब्जेक्टिव का मतलब अभी सारी पावर जुडिशरी के पास आ गई. जुडिशरी डिसाइड करेगी. पहले भी ऑब्वियसली जुडिशरी के पास पावर थी, पहले तो बिल्कुल भी कुछ डिमांड करने से पता कोई इन्फॉर्मेशन. और अभी हम ये कह रहे हैं कि अभी भले ही इनको ये हमें अपॉर्चुनिटी दी गई है कि आप लोग पर्सनल एसेट्स जान सकते हो जजेस के, बट साथ साथ ये बोलते हैं कि राइट टू प्राइवेसी ब्रीच नहीं होनी चाहिए जजेस की. एंड हु विल डिसाइड राइट टू प्राइवेसी ब्रीच हो रही है नहीं हो रही? ऑब्वियसली जुडिशरी. जुडिशरी अपने पास पावर हमेशा रखती है हाथ में. एंड साथ में ये भी बोला कि आरटीआई कैन नॉट बी यूज्ड एज अ टूल ऑफ सर्विलेंस. तो किसी जैसे आपको पता होगा एक इंसिडेंट आया था, फॉरगेट द नेम ऑफ जज, आप लोगों को याद होगा. तो जज का जैसे वो केस आया तो सारे के सारे उसके साथ हो गए थे. किसी लेडी ने ब्लेम लगाया था जज के ऊपर, हमने क्लास में डिस्कस भी किया था. तो सारा जो जजेस के बेंच थे इमीडिएट बेंच बुला के और इमीडिएट उसको बेसिकली खुद ही उसको फ्री कर दिया. एंड दैट आई थिंक चीफ जस्टिस ही था, नाम याद है आप लोगों को? लास्ट ईयर की बात है. रंजन गोगोई था. तो the sexual harassment case or the transfer case? Yeah, sexual harassment case. It was Ranjan Gogoi. तो उसी केस में तो सारे सो देखो आप, रंजन गोगोई खुद अपने बेंच पे बैठा था और खुद ही अपने बेंच पे बैठे खुद ही अपने बारे में डिसाइड कर रहे हैं. ओके, और सबने मिलके उस वुमन को कल्प्रिट बना दिया. ओके, सो ऑब्वियसली यू कैन थिंक ऑफ कि तो ये यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये डिसाइड कौन करेगा? जजेस ही डिसाइड करेंगे राइट टू प्राइवेसी हो रहा है नहीं हो रहा. सो डेफिनेटली. So it also said that only the names of judges recommended by the collegium can be disclosed, but not the reasons. Okay. So उन्होंने बोला कि जो भी हम collegium के ट्रांसफर कर रहे हैं बेसिकली, तो जो भी ट्रांसफर्स होंगे सिर्फ नेम डिस्क्लोज होंगे कि कौन कौन से ट्रांसफर हो रहे हैं, collegium ने कौन से नाम को बेसिकली प्रपोज किया है, and not the reasons. कि रीजन इसको हम नहीं बताएंगे कि किस लिए हमने किया है. So again, this is a opaqueness. There is no transparency in the collegium system. The collegium system is the worst system that we have, okay, to point or transfer the judges, because there is no transparency. Okay, तो जो 5 senior most judges होते हैं और उनमें से भी जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, there is a monopoly of these persons to decide about the judges. So that is why this National Judicial Appointment Commission was a welcome step. एंड आप सोचो कि उसको पहले तो कंसेंसस बनाया नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन के लिए, सारी पार्टीज ने बीच के बैठ के. ओके, कंसेंसस बनाने के बाद दोनों हाउसेज में उसको पास करवाना. ओके, उस पास करवाने के बाद प्रेसिडेंट ने उसको साइन किया, असेंट किया. ओके, एंड ये सारी प्रोसेस होने के बाद उसको पहले 20-25 साल से हम उसको इस तरह का बिल लाना चाह रहे थे. ओके, सो फॉर 25-30 इयर्स की मेहनत हमारी एक ही वर्डिक्ट में जुडिशरी ने खत्म कर दी. ओके, एंड दिस सेड दैट कि हम अभी नए रिफॉर्म्स करेंगे एंड यू कैन सी कोई रिफॉर्म नहीं हुआ. ओके, सो टीपू सुल्तान. सो नेक्स्ट टॉपिक दैट वी विल रीड अबाउट दैट इज टीपू सुल्तान. और ये हम एकदम से हिस्ट्री टॉपिक इसलिए पढ़ रहे हैं इसमें टीपू सुल्तान बिकॉज ही वाज इन न्यूज़. ओके, सोशल मीडिया पे काफी ट्रेंड भी हुआ था टीपू सुल्तान बिकॉज देयर वर टू साइड्स. एक साइड से तो कुछ लोग टीपू सुल्तान को गलत कह रहे थे, on the other hand few people were in defense. Okay, so in November 2000s of people gathered to pay tribute to 18th century Mysore ruler Tipu Sultan in Karnataka's Srirangapatnam on his 270th birth anniversary.
तो श्रीरंगापट्टनम इसलिए फेमस है बिकॉज ये इनकी कैपिटल सिटी भी थी मैसूर किंगडम की। ओके, टीपू सुल्तान की कैपिटल भी थी, एंड ही वाज डाइड इन श्रीरंगापट्टनम आल्सो। ओके, दैट इज व्हाई दिस श्रीरंगापट्टनम वाज अटैच्ड टू द मैसूर रूलर्स, द हैदर अली एंड टीपू सुल्तान। सो अभी हम देखेंगे सो दैट व्हाट इज द रोल ऑफ टीपू सुल्तान। ओके, तो ये थोड़ा सा कुछ पॉइंट्स देखेंगे टीपू सुल्तान ने क्या क्या किया था, क्या क्या रिफॉर्म्स किए थे, क्या क्या उसमें कुछ स्पेसिफिक थिंग देखेंगे हम लोग जो कि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस बार। ओके, सो ही वाज बोर्न टू हैदर अली एंड फातिमा फकर इन उन्नीसा, ये उनके मदर का नाम था और ये हैदर अली के फादर थे। हिज नेम वाज फतेह अली, जो टीपू सुल्तान का रियल नेम था फतेह अली। बट was often called Tipu after the local saint Tipu Mastan Aulia। तो ये जो लोकल सेंट थे टीपू मस्ताना ओलिया, उनके नाम पे इनका नाम टीपू रखा गया था। He ruled that kingdom of Mysore from 1782 to 1799। तो इस पीरियड के बीच में उन्होंने रूल किया था। He is credited as the pioneer of rocket technology in India। जो भी साइंटिफिक डेवलप, जैसे उस टाइम सिर्फ दो ही किंगडम थे जो कि फेमस थे, जो कि थोड़ा सा मॉडर्न तरीके से सोचते थे। अदरवाइज जो भी जितने मिडिवल रूलर्स थे वो क्यों हार गए थे ब्रिटिशर्स से? व्हाई ब्रिटिशर्स डिफीटेड दीज रूलर्स? ओके, जितने मुगल रूलर्स थे, आप सोचो कि मुगल रूलर्स को डिफीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल था किसी भी फोर्स के लिए, बट स्टिल ब्रिटिशर्स डिफीटेड द मुगल रूलर्स एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द बंगाल रूलर्स, दिस कार्नाटिक रूलर्स। उसका रीजन ये था कि उन्होंने जो अपनी वेपनरी थी, दो रीजन थे। एक तो यूनिटी नहीं थी इनमें, आपस में लड़ते रहते थे, एक किंगडम को यूज करते थे ब्रिटिश दूसरे किंगडम को बेसिकली अटैक करने के लिए। इसके अलावा एक सेकंड रीजन ये भी था दैट वी वर डिवाइड ऑफ दिस साइंस। ओके, इनफैक्ट हमने बार बार ये बात करी भी है, इनफैक्ट ये क्वेश्चन भी हमने क्लास में आपको मेंस में मैंने दिया था आप लोगों को टेस्ट में, दैट की दैट दिस मिडिवल इंडिया हम क्रिटिसाइज भी किया था। काफी जो फॉरेन जो बेसिकली ट्रैवलर्स थे उन्होंने भी क्रिटिसाइज किया था कि इन मिडिवल इंडिया ऑल्दो आवर एंशिएंट साइंस वाज वेरी पॉपुलर। हमने एंशिएंट में हमारे कंट्री में सर्जरी भी होती थी अर्ली क्रिश्चियन एरा में। ओके, एंड वी हैव द दिस चरक एंड सुश्रुत संहिता आल्सो of which talk about Ayurveda and all this medical science। okay, और मिडिवल टाइम में एकदम से आके हमारा साइंस में डिवाइड हो गए थे, साइंस बेसिकली हमारे कंट्री से एकदम से खत्म से हो गई थी। ओके, एंड उसी का रीजन था कि दैट वी वर डिफीटेड फ्रॉम द ब्रिटिशर्स। But only two rulers, one is Punjab, Ranjit Singh of Punjab, and other was Tipu Sultan of Mysore। ये दो रूलर्स थे जिन्होंने थोड़ा बहुत काम किया था साइंस के ऊपर। ओके, जिन्होंने अपनी वेपनरी को भी मॉडर्नाइज किया था। ओके, एंड जो थोड़ा सा सोचते थे साइंस के बारे में। ओके, which were aware about the modern technologies which were around the world, prevalent around the world। उनको पता था कि मॉडर्न वर्ल्ड में क्या हो रहा है, बाकी सब लोग इग्नोरेंट थे, उनको पता नहीं था कि दुनिया में क्या हो रहा है, कि दुनिया कहां पहुंच गई। So first of thing that he is done that he was a pioneer in the rocket technology in India। okay, तो रॉकेट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम किया था टीपू सुल्तान ने, and wrote a military manual, एक मिलिट्री मैनुअल लिखा था। that the name of that military manual was फातुल मुजाहिदीन। ओके, तो ये लिखा था उन्होंने फातुल मुजाहिदीन। इट वाज ए मिलिट्री मैनुअल ऑफ रॉकेट टेक्नोलॉजी। ओके, तो याद रखना ये वर्ड, which explains the operation of Mysore rockets। तो मैसूर के पास रॉकेट्स थे, तो उसको ऑपरेट कैसे करते हैं ये इस मैनुअल में लिखा गया था। ओके, फातुल मुजाहिदीन। With his excellent organizational skills, he built a disciplined and loyal army and robust navy। तो इनफैक्ट इनके फ्रांस के साथ काफी अच्छे रिलेशन थे टीपू सुल्तान के, तो कुछ फ्रेंच सोल्जर्स की इन्होंने सर्विस भी ली थी, एंड ही मेड ए लॉयल आर्मी। और इनकी आर्मी में कुछ फॉरेनर्स भी थे जो ट्रेन भी करते थे इनकी आर्मी को। लॉयल आर्मी एंड रोबस्ट नेवी, सो हिज नेवी वाज आल्सो वेरी मच स्ट्रांग। हिज इकोनॉमिक measures boosted the Mysore silk industry। Okay, so because he made some reforms in this silk industry, that was this Mysore silk industry was very much popular। He tried to do away with the custom of giving jagirs। Okay, he tried to do away with the custom of jagirs।
जागीर का याद है किसी को? व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ जागीर? यस, एनीबॉडी? एनीबॉडी रिमेंबर द सिस्टम ऑफ जागीर? तो ये कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं और आजकल ये एनालिटिकल क्वेश्चन आने लग गए हैं, काफी डीप क्वेश्चन आते हैं हिस्ट्री में। और आई थिंक जितना हो सकता था हम लोगों ने इसको डीप पढ़ा है हिस्ट्री को, ओके। एंड हर एक कंसेप्ट को हमने बहुत डेप्थ से पढ़ा है, डेफिनेटली। मैंने आपको हर तरह का कंसेप्ट दिया है, उसमें जागीर भी डिस्कस किया था हम लोगों ने, रेवेन्यू फार्मिंग और ये सब चीजें हम लोग डिस्कस कर चुके थे, ओके। इजारा और रेवेन्यू फार्मिंग एक्सेट्रा, एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो मेक श्योर कि आप लोग नोट्स रिवाइज कर रहे हो, बिकॉज आपको बता रहा हूँ कि सिर्फ नोट्स रिवाइज कर लोगे ना, ओके, स्टिल योर सिलेक्शन इज श्योर, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका सिलेक्शन इजीली हो जाएगा। सो मेक श्योर दैट, बिकॉज इस तरह क्वेश्चन आते हैं आजकल, लास्ट ईयर भी आई थिंक लास्ट ईयर ही क्वेश्चन आया था, दो चीजों में डिफरेंस पूछा हुआ था, आई थिंक जागीर और एक क्वेश्चन और कुछ डिफरेंस पूछा हुआ था, तो डिफरेंस, टेक्निकल डिफरेंस पूछा हुआ था, और वो बच्चे कर नहीं पाएंगे, ओके। जागीरदारी एंड जमींदारी में था सर। हाँ, जागीरदारी एंड जमींदारी, राइट। उसमें हमने क्लास में भी ये क्वेश्चन लिया था कि क्यों था, और ये सब चीजें हम कर चुके थे, जागीरदारी जमींदारी ये सब क्या है, ये सब हम कर चुके हैं, ओके। तो ये प्लीज आप दोबारा नोट्स रिवाइज करो, हमने बहुत डिटेल में किया, आप लोगों को पता है कि बहुत डिटेल में किया हम लोगों ने, तो इसको नोट्स रिवाइज करो, बिकॉज विदाउट दिस आई कैन नॉट हेल्प, ओके। सो जागीर, बेसिकली जागीरदारी वही होता था कि यदि आप जो भी जागीरदार हैं, ओके, तो ये जो ऑफिशियल्स होते थे, इनको बेसिकली ये जो जमींदार उनकी प्राइवेट लैंड्स होती थी, और जागीरदार की क्या होती थी, ऑफिशियल लैंड्स होती थी। इनको बेसिकली जो गवर्नमेंट थी वो इनको सैलरी ना पे करके, इनको सैलरी ना देके उनको जमीन का टुकड़ा दे देती थी, ओके, कि आप इसमें से जो भी रेवेन्यू आप कलेक्ट करोगे, तो आप अपना उसमें से निकाल के, जो भी अपनी सैलरी अमाउंट निकाल के बाकी आप ट्रांसफर कर देते हो स्टेट। तो ये जागीरदारी सिस्टम। और जो जमींदारी लैंड थी वो उनकी पर्सनल होती थी, लैंड प्राइवेट लैंड होती थी। तो ये चीजें आपको तो ये रिवाइज करना, सब चीज याद आ जाएंगी आपको। सो एंड दस इंक्रीज द स्टेट इनकम, ओके। तो उसने ये जागीरदार सिस्टम को रिफॉर्म करने की कोशिश की, बिकॉज जागीरदार सिस्टम में काफी करप्शन था। बिकॉज जो भी जागीरदार बना दिए जाते थे, जो भी ऑफिशियल्स होते थे ऑब्वियसली स्टेट के, उनको जागीरदार बना दिया जाता था, उनको जागीर दे दी, जागीर मतलब लैंड दे दिया, उसमें से जो कलेक्शन ऑफ दिस रेवेन्यू was given to these जागीरदार। ये लैंड परमानेंट नहीं होती थी, परमानेंट नहीं होती थी, जो नया ऑफिशियल आएगा उसको ये दूसरे को मिल जाएगी जागीरदारी, उनकी जो हेरिडेटरी नहीं होती थी ये लैंड, ओके। ये सब हम लोग कर चुके हैं। तो उसके बाद फिर क्या था कि इसमें करप्शन काफी था, ओके। सो टिप्पू सुल्तान trying to reform this Jagidari system and thus increase the state income. He also made an attempt to reduce the hereditary possession of the oligarchs. Okay, oligarchs basically farmers के बोलते थे, okay. He introduced a new calendar, a new system of coinage and new sales of weights and measures. Okay, तो ये सब चीजें उसने इंट्रोड्यूस की थी। And his personal library contained books on diverse subjects as religion, history, military, science, medicine and mathematics. तो ये काफी सारी बुक्स भी लिखी गई थी इन टॉपिक्स के ऊपर, okay. He showed a keen interest in the French Revolution and Napoleon Bonaparte. So Napoleon Bonaparte was contemporary of Tipu Sultan. Okay, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में. So this Napoleon Bonaparte was temporary of Tipu Sultan. And इसका alliance था टिप्पू सुल्तान के साथ, because I said that this French या फ्रांस इस अच्छे रिलेशन थे टिप्पू सुल्तान के साथ. और फ्रांस अच्छे रिलेशन इसलिए थे because आप लोगों को याद होगा कि पहले इंडिया में जो दोनों डोमिनेंट पावर्स थी, ब्रिटेन और फ्रांस, और दोनों के बीच में वॉर्स हुई, ओके। देन जो कौन सी बैटल थी जिसके बाद फ्रेंच हार गए थे ब्रिटिशर से, एंड दे वर गेट आउटस्टेड फ्रॉम द इंडिया? कौन सी बैटल थी, लास्ट बैटल हुई थी?
ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में इंडिया में। यस, एनीबॉडी? सो इट्स ए बैटल ऑफ वांडी वाश। तो मेरे को लगता है आप लोगों के नोट्स काफी कम रिवाइज किए आप लोगों ने, अभी सारे काम छोड़ के, ओके, बड़ी न्यूज़पेपर छोड़ दो या कुछ भी छोड़ दो, सारा काम पढ़ना ये सब छोड़ दो, करंट अफेयर का हम लोग कर रहे हैं। वैसे भी आप एक काम करो कि आज से ही, अभी से ही आप न्यूज़पेपर, सॉरी पास्ट नोट्स हमारे सब रिवाइज करोगे आप लोग दोबारा से, ओके। और बिकॉज दिस इज वेरी सीरियस सिचुएशन, बिकॉज आप लोग सब कुछ बोल रहे हो, तो ये सब नोट्स आप रिवाइज करोगे, वेदर इट्स हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ओके। एंड आई विल कंडक्ट अ फ्यू एग्जाम्स आल्सो, ओके। कुछ एग्जाम भी कंडक्ट करवाता हूं मैं अभी, बिकॉज दिस इज गेटिंग सीरियस सिचुएशन, ओके। तो ये नोट्स रिवाइज करो आप लोग सारी चीजें, ओके। तो ये क्वेश्चन ऐसी आएंगी जो मैं बात कर रहा हूँ, सब जो पढ़ाई हुई से मैंने क्वेश्चन आएंगे, किसी बात से नहीं आने वाला, डोंट वरी, ओके। तो he showed a keen interest in the French Revolution and Napoleon Bonaparte also certain lines with him. He planted a tree of liberty, okay. He planted a tree of liberty in Srirangapatnam and became a member of a Jacobean club. ये सब हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं, that he planted a tree of liberty in Srirangapatnam and became a member of Jacobean club. He died while fighting the British troops at Srirangapatnam during the Fourth Anglo-Mysore War on May 4th, 1799. ओके, तो ये फोर्थ एंग्लो मसूर वार में बेसिकली हुई थी लास्ट, दैट इज ऑन May 4, 1799 in Srirangapatnam when he was died. His tomb lies next to his parents at Gumbad-e-Shahi in Srirangapatnam, ओके। तो ये वहां पर उनकी टॉम थी। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज द रूल 12 ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, और इसके ऊपर इस बार क्वेश्चन आ सकता है, ओके, प्रीलिम में भी और मेंस में भी, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। सबको पता है ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स क्या होते हैं, एंड कौन से आर्टिकल्स में, या ये ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स कौन बनाता है, कौन से आर्टिकल में बात हुई है इसकी, एंड व्हाट इज दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स? यस, एनीबॉडी? पॉलिटी में पढ़ा था हम लोगों ने, यस, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। सिंपल क्वेश्चन आएगा, आप देखना एग्जाम में, प्रीलिम में सिंपल क्वेश्चन पूछा होगा कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स, हु इज रिस्पांसिबल टू फ्रेम दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स? चार ऑप्शन होंगे, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। इस तरह से चार ऑप्शन हो जाएंगे, ओके। उनमें से एक का आपको आंसर करना है, सिंपल क्वेश्चन। अभी आपको ऑप्शन भी दे दिए, यस, व्हाट विल बी द आंसर? एनीबॉडी? ओके, सो ऑब्वियसली प्रेसिडेंट, इट्स अप टू प्रेसिडेंट। वो अलग बात है कि प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एड एंड एडवाइस करेगा, पर आर्टिकल 77 ये बोलता है कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की जो दी गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है, ये प्रेसिडेंट को दी गई है, ओके, आर्टिकल 77 के अंदर। तो अभी ये सब हम पढ़ते हैं कि व्हाट इज दिस रूल 12 ऑफ दिस ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स। तो ये ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स है क्या, पहले इसमें बात कर लेते हैं। जो भी एग्जीक्यूटिव्स जो बेसिकली परफॉर्म करते हैं, जो फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, तो ये किस तरह से परफॉर्म करना है हमको, ये सारा बिजनेस, जैसे कैसे कैबिनेट की मीटिंग बुलाई जाएगी, कैसे कम्युनिकेशन होगा प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट और प्राइम मिनिस्टर के बीच में, तो ये सारा, या कैसे इंटर मिनिस्ट्रियल काम होगा, या किस कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, तो इसको डिटेल्ड रूल्स बेसिकली ये आर्टिकल 77 ये बोल रहा है कि ये सारे रूल्स प्रेसिडेंट बनाए। ऑब्वियसली प्रेसिडेंट खुद तो बनाएगा नहीं, सो ही विल टेक एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। भले वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस ले रहा है, बट स्टिल इन एग्जामिनेशन योर आंसर विल बी प्रेसिडेंट, बिकॉज़ आर्टिकल 77 ये बोलता है कि प्रेसिडेंट को रिस्पांसिबिलिटी दी गई है। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल, जैसे हमने बात की कि कैसे काम होता है, कैसे एग्जीक्यूटिव सारे काम करते हैं, ये एग्जीक्यूटिव मतलब प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये कैसे काम करते हैं, ये बेसिकली ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स में बताया गया है। सो इसी में एक रूल है, रूल नंबर 12 ऑफ ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स व्हिच वाज इन न्यूज़, एंड दैट्स व्हाई इट कैन बी आस्क्ड इन प्रीलिम एज वेल एज मेंस, ओके। तो ये है, क्या देखते हैं हम इसको। सो रूल 12 ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 allows the prime minister to depart from laid down norms at his discretion। तो ये रूल 12 क्या बोलता है कि दैट
obviously rule 12 इसी transaction of business rules 1961 के allows the prime minister to depart from laid down norms at his discretion without the approval of the cabinet. तो ये प्राइम मिनिस्टर को ये भी याद रखना कि एग्जाम ये स्टेटमेंट आ सकते हैं कि ये रूल 12 किसको पावर देता है डिस्क्रिशन को एक्ट करने के लिए, तो आंसर में भी प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर को अदरवाइज क्या होता है ट्रांजैक्शन बिजनेस रूल्स में क्या होता है कि कोई भी डिसीजन लेना है प्राइम मिनिस्टर खुद नहीं लेता, ओके, एक कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाती है और फिर वो कैबिनेट मीटिंग के बाद वो सारे डिस्कस करते हैं, तो फिर वो जो कैबिनेट मीटिंग कलेक्टिवली जो डिसीजन लेंगी वो फिर प्रेसिडेंट के पास जाते हैं और फिर वो प्रेसिडेंट इसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, जनरली ये होता है, ओके। बट रूल 12 एक एक्सेप्शनल पावर देता है प्राइम मिनिस्टर को, जिसके चलते प्राइम मिनिस्टर क्या करेगा कि वो जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं उनको बेसिकली उनका जरूरी नहीं होता, तो वो एक डिस्कशन बेस पे काम कर सकता है प्राइम मिनिस्टर इवन विदाउट हैविंग डिस्कशन विद हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एक यूनिलैटरली डिसीजन ले सकता है प्राइम मिनिस्टर और उसके बाद उसको प्रेसिडेंट को पास कर सकता है और फिर प्रेसिडेंट अदरवाइज क्या होता है प्रेसिडेंट हमेशा कहता है कि साइन दिखाओ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के कैबिनेट के, ये सब लोग इसमें तैयार है या नहीं है, ओके, बिकॉज आर्टिकल 74 में ये क्लियर कट लिखा है दैट दिस प्रेसिडेंट एक्ट्स ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट्स नॉट रिटन दैट प्रेसिडेंट एक्ट्स एंड एड एंड एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ऐसा नहीं लिखा। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो उसको एड एंड एडवाइस देगा उसके बिहाफ पर प्रेसिडेंट काम करेगा, ओके। बट रूल 12 एक एक्सेप्शनल पावर देता है प्राइम मिनिस्टर को दैट इट कैन बाईपास इट्स कैबिनेट इन डिसीजन मेकिंग, ओके। सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है दैट by this rule 12 of the 1961 act allows the prime minister to depart from laid down norms at his discretion without the approval of the cabinet. So the cabinet can subsequently give post facto approval for any decision taken under rule 12, okay. उसके बाद क्या है, जैसे ही डिसीजन हो गया, मान लो पर्टिकुलर ने रूल 12 का यूज कर लिया, प्राइम मिनिस्टर ने बाईपास कर दिया अपनी कैबिनेट को, प्रेसिडेंट डिसीजन ले लिया और डिसीजन के बाद लेने के बाद डिसीजन लेने के बाद फिर वो दोबारा पोस्ट फैक्टो अप्रूवल में अब अप्रूवल लेगा प्राइम मिनिस्टर अपने कैबिनेट का, ओके। सब हो गया एक तरह से, एक जस्ट एक आप बोलते खाना पूर्ति है ये बाद में जो करने वाला, ओके, जस्ट इट्स अ फॉर्मेलिटी, ओके। तो बट दिस रूल 12 गिव्स एक्सेप्शनल पावर टू प्राइम मिनिस्टर। तो ये याद रखना कि एग्जाम में अगेन ये चार ऑप्शन आएंगे कि एक्सेप्शनल पावर किसको मिलती है रूल 12 के अंदर, प्रेसिडेंट, पार्लियामेंट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या प्राइम मिनिस्टर या कोई भी और एक ऑप्शन आ सकता है। So your answer will be प्राइम मिनिस्टर फर्स्ट ऑफ। So what is transaction of business under the part 5 of the Indian Constitution article 77? ये मैंने आपको जब आपको प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था तो मैंने आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाए थे कि व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के फंक्शन क्या है। उस टाइम मैं आपको बताया था कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस डिसाइड करना भी एक फंक्शन है प्रेसिडेंट का। एट दैट टाइम यू हैव डिस्कस्ड इट, ओके। So under part 5 of the Indian Constitution, Article 77 deals with the conduct of business of the government of India. So clause 3 of Article 77 states that the Parliament shall make rules for the more convenient transaction of the business of the government of India and for the allocation among ministers of the said business. Okay. So clause 3 of 77 क्या बोलते हैं? That the President shall make rules. तो ये देखो आर्टिकल 77 में ये साफ लिखा हुआ है कि जब प्रेसिडेंट इस रूल्स को बनाएगा, कौन से रूल्स को, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स को, कि कैसे काम करेंगे एग्जीक्यूटिव्स, वो सारे रूल्स बनाने की रिस्पांसिबिलिटी प्रेसिडेंट की है। तो ये आंसर विल बी प्रेसिडेंट, ओके। तो ये थोड़ा ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस के बारे में आपको बताया हुआ यहाँ पे। Now the government of India transaction of business rules 1967 has been framed under article 77(3). And why it was in news? ये भी देख लो आप लोग। So to revoke president's rule in Maharashtra, government used it. Okay. So महाराष्ट्र में जो ड्रामा हुआ था, बार बार गवर्नमेंट बनी थी और बार बार गिरी थी, तो उस ड्रामे का एक पार्ट है, तो उस टाइम रूल 12 यूज हुआ था। Then but our prime minister did, कि प्राइम मिनिस्टर ने रूल 12 का यूज किया और प्रेसिडेंट को बोला कि आप प्रेसिडेंट रूल वहां से हटा दो महाराष्ट्र गवर्नमेंट महाराष्ट्र में से, ओके। उस टाइम ये रूल 12 का यूज हुआ था पहले। एक तो ये एक बार और यूज हुआ था अभी लास्ट ईयर, और वो था स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का जब रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था इन मंथ ऑफ अगस्त, उस टाइम भी ये दिस रूल 12 का यूज हुआ था। जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड किया गया था, ओके, तो तब भी ये रूल 12 का यूज किया गया, ओके।
ये दो इंसिडेंट्स में लास्ट ईयर ये रूल 12 यूज हुआ है, एंड दैट इज व्हाई इट कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम. सो रूल 12 was used by former prime minister, and इससे पहले कब यूज हुआ था? इंदिरा गांधी ने यूज किया था in 1975 टू डिक्लेयर द इमरजेंसी. आप लोगों को याद होगा जब मैं आपको प्राइम मिनिस्टर्स पढ़ा रहा था, जिससे वी हैव रेड ईच एंड एवरी प्राइम मिनिस्टर, तुमने इंदिरा गांधी का भी देखा था पीरियड. सो इंदिरा गांधी ने जब नेशनल इमरजेंसी लगा रही थी तो उन्होंने एक बेसिकली क्या किया, अपने कैबिनेट को बाईपास किया. किसी को पता ही नहीं था कि ऐसा नेशनल इमरजेंसी लगने वाली है. इनफैक्ट जब सारे मिनिस्टर्स उनके सुबह उठे मॉर्निंग में, उनको न्यूज़पेपर पढ़ के पता लगा कि ऐसे कोई नेशनल इमरजेंसी लग भी गई है. एंड दैट एट दैट टाइम देयर वाज सो मच क्रिटिसिज्म दैट no cabinet minister, whether it is a home minister, whether it is a finance minister, no cabinet minister was taken considered, okay, to declare this national emergency. Okay, and unilaterally Indira Gandhi ने rule 12 का यूज करते हुए प्रेसिडेंट को बोल दिया that you should proclaim this national emergency. Okay, so इसलिए रूल 12 एक कंट्रोवर्शियल प्रोविजन है. एग्जाम में इसके ऊपर यदि मेंस में क्वेश्चन आता है तो क्रिटिकली एनालाइज का क्वेश्चन आएगा. ओके, रूल 12 के ऊपर इसको क्रिटिकली एनालाइज करो. तो उस टाइम आपको ये क्रिटिसाइज करना है कि ये जो रूल 12 है ये साफ वहां पर लिखा हुआ है, ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस भी लिखा हुआ है कि दैट दिस रूल 12 शुड बी यूज्ड इन द इमरजेंसी ओनली. सिर्फ आप इमरजेंसी या कॉन्टिजेंसी पीरियड में आपको इसको यूज करना है, एंड नॉट इन ए डे टू डे बिजनेस. ऐसे रेगुलरली यूज नहीं कर सकते आप. ओके, बट जैसे कि हमने देखा कि लास्ट ईयर में 2 बार यूज हो चुका है, तो जम्मू एंड कश्मीर के केस में, एंड सेकंड इज द इन द महाराष्ट्र केस, द रिवोक ऑफ द प्रेजेंट रूल इन महाराष्ट्र. So this is it with this class. और आज आर्ट एंड कल्चर की क्लास नहीं है, सिर्फ करंट अफेयर्स की क्लास थी. ओके, और अभी ये बात आती है कि हमारी प्रिपरेशन की. फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको देखो एक लकीली हमें टाइम एक्सटेंड मिल गया है. ओके, टाइम का एक्सटेंशन हो गया कि हमें कम से कम 1 महीना ज्यादा मिल जाएगा. ओके, अभी 3 तारीख के आसपास आपको पिछली परसों तक आपको एक न्यूज आ जाएगी, नोटिफिकेशन मिल जाएगा यूपीएससी का. ये पेपर आपको पोस्टपोन हो गया. सो आई थिंक 3 मई तक बता रहे हैं यूपीएससी का नोटिफिकेशन आने वाला है. ओके, regarding this delay of the paper, okay, postponement of the paper. So at least 1 मंथ से आपको एक्सटेंशन होगा, मे भी उससे ज्यादा एक्सटेंशन मिल जाए. तो ये फॉर्चुनेट है, हम लोग लकी है कि हमें एक्सटेंशन मिल गया. और इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप लोग क्या करो कि आप सारे नोट्स दोबारा से रिवाइज करो चीजों को, एंड मेक श्योर कि कुछ भी छोड़ो नहीं. आप दोबारा से रिवीजन 2 या 3 बार जितनी बार पढ़ो तो पढ़ लो. ओके, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे मैंने बोला करंट अफेयर जो हिंदू आप पढ़ रहे हो उसको थोड़ा सा टाइम कटेल कर दो. 1 घंटे से ज्यादा उसको मत लो, या हाफ एन आवर के अंदर खत्म कर दो. बिकॉज अभी जो न्यूज़पेपर में ज्यादा न्यूज आ नहीं रही है. ओके, मैं भी देख रहा हूँ उसमें ज्यादातर कोरोना वायरस की ये न्यूज, यही सब न्यूज आती है. तो ज्यादा न्यूज है नहीं. ओके, तो ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे इस टाइम में. जो भी न्यूज आई उसको ज्यादा खास कुछ इंटरनेशनल कुछ मीटिंग्स नहीं हो रही. ओके, नेशनल कुछ स्कीम्स नहीं आ रही है, नहीं, या कुछ भी ऐसा नहीं आ रहा है. जो भी कुछ हो रहा है कोरोना वायरस से इंटर रिलेटेड ही कुछ हो रहा है. ओके, तो वो कुछ उसमें कुछ स्पेसिफिक अच्छी आपको मिलते पढ़ लो, अदरवाइज बाकी सब छोड़ो. ओके, कुछ ज्यादा हो नहीं रहा, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कुछ भी नहीं हो रहा. ओके, सो दैट्स व्हाई इट्स हाई टाइम टू रिवाइज आवर कन्वेंशनल पार्ट. जो भी हम लोग पढ़ चुके थे, नोट्स में हमने पढ़ा था. इनफैक्ट जितना करंट अफेयर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उससे कहीं ज्यादा मैंने आपको क्लास पीरियड में पढ़ा दिया था. ओके, तो उससे कहीं हमने बात की थी. इनफैक्ट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट और दिस भारत 22 एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन क्लास. इनफैक्ट हम थोड़ा रिपीट ही कर रहे हैं. कुछ चीजें डेफिनेटली स्पेसिफिकली मैंने रखी थी बाद में बात के लिए, वो ना कर रहे हैं. सो मेक श्योर दैट कि कन्वेंशनल बहुत अच्छे से पढ़ लो. ओके, बिकॉज अवर नोट्स आर वेरी कम्प्रिहेंसिव. कुछ मत पढ़ो, भले कोई बुक मत पढ़ो चलेगा, बट नोट्स एक दफा रिवाइज कर लो, एंड इट्स मोर देन इनफ. आपको एग्जाम में हंसते हंसते सिलेक्शन हो जाएगा. ओके, सो मेक श्योर कि ये सब रिविजन करो, एंड आई विल कंडक्ट फ्यू टेस्ट आल्सो. सो विल मीट टुमारो. ओके, एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? Okay.